Good morning, dear students. Welcome back again in the computer class. Last time we were discussing chapter 6 and few of the topics we have already covered like first, second, third, fourth, fifth. Up to here we have completed in our previous classes. Now the topic which we need to discuss today is your operators. So I am going to discuss the types of operators and what are operators in Java. So let us move to the topic. Now look at here, at the last we are having the definition of operators. Now operators are what? It is a special symbol that performs a specific operation between two operands. A special symbol that performs a specific operation between two operands is known as operator. Now what do you mean by this statement or definition? It says कि it is a kind of symbol, like I say plus, plus is a symbol. I say minus, it is also a symbol. I say multiply is a symbol. I say greater than, less than, equal, double equal. So all these are what? These are some kind of symbols that performs a specific operation. Obviously you know what? That plus is used to add the two numbers. Minus or subtraction sign is used to subtract second number from the first number. In the same way, this asterisk sign is used to multiply two numbers. That means a specific operation used to perform some specific operation between two operands. Now here it is given between two operands. Now operands are what? Operands means those values or those variables on which you are going to perform the calculation. Right? I will explain you with the help of example the difference between the operator and operand. Like if I write 2 plus 3. So 2 plus 3 is a kind of example in which plus is what? Plus is your operator. Plus is your operator. And if I say 2 and 3, what are these? So this 2 and 3 are known as your operands. मीन्स ऑपरेटर क्या होता है? जिससे ऐसा सिंबल जिससे हम कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे प्लस से हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज ऑपरेटर. और किसको ऐड कर रहे हैं? 2 को और 3 को ऐड कर रहे हैं ना, तो दैट 2 and 3 विल बिकम योर ऑपरेंट. I hope it is clear to you the difference between operator and operand. Now moving on here, the different types of operators are. The first one is arithmetic operators. Next here, the second one is your relational operator. The second one is relational operator. Third is logical and fourth is assignment. Now today we will discuss all these types one by one. Moving on to first, arithmetic operators. They perform arithmetic operations between two operands. Now as we have already discussed about what are operands, so to perform the arithmetic operations or to perform the arithmetic calculations, we use the operators known as arithmetic operators. The result of an arithmetic expression is a numeric value. Obviously मैंने आपको बताया था ना, अगर आप लिखते हो 2 plus 3 तो आंसर कितना आएगा? 5. So 2 is what? Operand. 3 is what? Operand. और जब 2 और 3 को ऐड करोगे so you will get some answer. So obviously this will be a numerical value. 5 क्या है? 5 is a number ना, तो 5 क्योंकि एक नंबर है तो 5 किस टाइप की वैल्यू है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. गॉट इट? तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आपका जो आंसर आता है दैट विल बी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप. गॉट इट? नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हियर given on the left side. These are the types of arithmetic operators. Now look at here one by one. First is your plus. Now this is here your symbol. The name of this symbol is plus. And what is the use of this? It is used to add two numbers. Like if I am writing num1 plus num2. So num1 एक variable है जो एक number contain कर रहा है, and num2 is the another variable which is going to store the another number. और हम इन दोनों number को क्या कर रहे हैं? add. तो add करने के लिए हम क्या use करेंगे? plus sign. Right? In the same way I will use minus. So symbol is what? This. What is the name of this symbol? Minus.
So I will write minus here. And what is the use of it? It subtracts the second number from the first number. For example, num1 minus num2. So num1 क्या है? num1 is a variable, num2 is also a variable. और क्या कर रहा है ये? num2 को subtract कर रहा है किस में से? number 1 में से. So number 2 will get subtracted from number 1. Next is your asterisk, that is known as your multiply sign. Remember one thing, in Java when I want to multiply two numbers, then I do not use this sign. I will not write like 2 multiply 3. It is wrong in Java. I have to use the sign which is known as asterisk, like this. Now this is the correct. So 2 into 3 is what? 6. Right? So this is used to multiply two numbers, and this is the example given here. In the same way you will use the next known as your divide. ठीक है, जो next है आपका वो है divide. Now it divides the first number by the second number. It divides the first number by the second number. For example, num1 divided by num2. So number 1 को आप number 2 से divide कर रहे हो. For example, if I write 4 divided by 2. So when division operation is performed, so it is used to give the quotient. क्या देता है हमें? क्वोशिएंट. तो जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आता है? 2. Got it? One more is there. This is known as your percentage sign. But in normal terms, that means in your daily life, you use this sign as percentage. But in Java, this is not percentage sign. It is known as your modulus. What is the name of it? Modulus. Got it? जावा के अंदर इस परसेंटेज साइन को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस. और यूज़ क्या होता है मॉड्यूलस का? दिस इज यूज टू डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर. लुक एट हियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देखिए क्या है. फर्स्ट है डिवाइड और सेकेंड है मॉड्यूलस. जो फर्स्ट वाला है वो आपको क्या देता है? क्वोशिएंट. राइट? And the second one is used to give us the remainder. Mark it in your book if you are having right now. Open your book and mark it with a pencil the difference between these two. The first one is used to give the quotient and second one is used to give the remainder. Now let us try to understand with the help of one example here. If I write 4 divided by 2. So when I will perform 4 divided by 2, so 2 2s are 4 and what will be the remainder? 0. So अगर मैंने ऐसे लिखा 4 divide 2, so my answer is what? मुझे आंसर क्या मिलता है? क्वोशिएंट. Now what is the quotient? क्वोशिएंट कितना है अब हमारा? क्वोशिएंट is your this. It is your quotient. तो डिवाइड हमें क्या देता है? क्वोशिएंट देता है. तो आंसर कितना आएगा? 2. बट इफ़ आई राइट 4 मॉड्यूलस 2, अब ये हमें क्या देगा? 4 मॉड्यूलस 2 इज़ यूज टू गिव अस द रिमाइंडर. नाउ व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर कौन सा है इसमें? ये. दिस इज़ योर रिमाइंडर. राइट? तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. गॉट द डिफरेंस? तो डिवीजन ऑपरेशन जो होता है, जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, दैट इज़ यूज टू गिव अस द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर एंड modulus operator is used to give the remainder. Right? Next here is your relational operator. Relational operators, they compare the two values. And return either true or false. ये हमें क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू और फॉल्स. और क्या करते हैं? इनका यूज़ क्या है? टू कंपेयर टू वैल्यूज़. ओनली टू वैल्यूज़ को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर. नाउ लुक एट हियर. द फर्स्ट वन इज, look at this. The first one is your less than. If I put the equal sign with this less than, so it will become as less than or equal to. The next one is greater than. Next one is greater than equal to. This is your equal to sign. अब यहाँ पे equal to ये वाला यूज़ नहीं करोगे. This is wrong. Okay? This is your equal to and this one is not equal to. Learned? याद कर लोगे. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन equal to,
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये इसका क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है दीज आर योर सिम्बल्स एंड दीज आर द नेम्स ऑफ दीज ऑपरेटर्स, ये क्या है इसका नेम। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका 2 और 3 और मैंने पुट किया है साइन। नाउ दिस साइन इज़ योर व्हाट, ये जो साइन मैंने अभी लगाया है ये साइन कौन सा है आपका, लेस देन का। कौन सा साइन है ये, लेस देन का। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3, येस और नो, येस। सो इफ़ इट इज़ ट्रू तो हमें क्या पता है, आंसर किस में रिटर्न करता है, आइदर इन ट्रू और इन फॉल्स। किस में रिटर्न करता है, ट्रू में या फॉल्स में। तो 2 3 से छोटा है, 2 3 से लेसर है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। आंसर विल बी ट्रू, मैंने बताया ना आंसर विल बी रिटर्न इन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपका आंसर, अगर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है सो आंसर विल बी इन ट्रू, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो आंसर विल बी इन फॉल्स। गॉट इट। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। इफ आई राइट 2 is less than equal to 3, 2 is less than or equal to 3, तो इसमें दोनों चेक होंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, either 2 is less than 3 और 2 is equal to 3। अगर कोई सा भी एक ट्रू है, मतलब कोई सा भी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो आंसर विल बी इन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। रिपीटिंग अगेन, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है मीन्स आइदर ऑफ दिस और दिस, अगर इन दोनों में से कोई सा भी करेक्ट है तो आपका आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आप ज़रा देखिए, 2 इज़ लेस देन 3, इज़ दैट करेक्ट और नॉट, येस बिल्कुल, 2 3 से छोटा होता है ना, तो इट मीन्स इट विल रिटर्न यू ट्रू। और अब देखो 2 इज़ इक्वल टू 3, क्या 2 3 के इक्वल है, फॉल्स। तो मतलब कोई सा भी एक अगर ट्रू होगा तो 2 3 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 2 3 से छोटा तो है, 2 3 के इक्वल नहीं है बट 2 3 से छोटा तो है। और अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, आंसर ट्रू। तो आपका आंसर कितना आएगा इस केस में, ट्रू। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, नाउ व्हाट विल बी द आंसर। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, क्या, एक तो 5 इज़ लेस देन 6, क्या 5 छोटा है 6 से, नो, फॉल्स। क्या 5 6 के इक्वल है, नो, फॉल्स। तो कोई सी भी कंडीशन, मतलब कोई सा भी ऑपरेटर ठीक नहीं चल रहा है, कोई सा भी ऑपरेटर करेक्ट नहीं है, सो आंसर विल बी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, कंडीशन क्या है, 5 6 से ग्रेटर है, नो, तो क्या रिटर्न करेगा आंसर, फॉल्स। Look at the next example. Fourth, 5 is greater than equal to 15. अब दोनों चेक करने हैं, क्या 5 ग्रेटर है 15 से और क्या 5 इक्वल है 15 के। तो क्या 5 ग्रेटर है 15 के, नो, मतलब फॉल्स। क्या 5 इक्वल है 15 के, नो, अगेन फॉल्स। सो योर आंसर विल बी फॉल्स। कोई भी एक ट्रू होगा, listen me carefully, if any one of the condition will be true, answer will be true, otherwise false. Okay, let us take one more example. 13 is greater than equal to 10. Now this will be split into two parts कि 13 is greater than 10 और 13 is equal to 10। तो क्या कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, yes। 13 इक्वल तो नहीं है 10 के, लेकिन 13 ग्रेटर तो है 10 के ना, तो 13 अगर 10 के ग्रेटर है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 13 इज डबल इक्वल टू 10, क्या 13 10 के इक्वल है, नो, सो आंसर विल बी फॉल्स। इफ आई राइट 10 इज डबल इक्वल टू 10, यानी कि चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या 10 10 के इक्वल है, यस बिल्कुल है, सो आंसर विल बी ट्रू। इफ आई राइट 100 इज इक्वल 125, क्या 100 और 125 इक्वल है, नो, सो आंसर विल बी फॉल्स। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल। अब इक्वल का जो डबल
रिवर्स होता है वो होता है नॉट इक्वल। अब ये इसका अपोजिट वर्क करेगा, जैसे कि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 12। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? 10 इज़ नॉट इक्वल टू 12, 10 12 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होता, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इफ़ आई राइट 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, 10 10 के इक्वल नहीं है, नाउ दिस इज़ फॉल्स। 10 10 के इक्वल नहीं है, ये सही है क्या? ऑब्वियसली नॉट, सो आंसर विल बी फॉल्स। मीन्स आपको चेक करना है कि अगर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसको पढ़ के देख लीजिए इंग्लिश की फॉर्म में। अगर आपको लग रहा है पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब इसको इंग्लिश में पढ़ के देखो ज़रा, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 3 के इक्वल नहीं है, ये बात सही है। इज़ दैट स्टेटमेंट करेक्ट? ऑब्वियसली 2 3 के इक्वल नहीं होता ना, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस विल रिटर्न ट्रू। गॉट इट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हियर, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर डन। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड व्हेन 2 और मोर कंडीशंस आर टू बी इवैल्यूएटेड एंड दे रिटर्न्स द आंसर इन ट्रू और फॉल्स। ये भी किस में आंसर देते हैं? ट्रू और फॉल्स में। लेकिन अगर हम क्या करें, कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो हम लॉजिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ज़रा, इफ़ आई एम राइटिंग 2 इज़ ग्रेटर देन 3, सो दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। If I write 4 is less than 5, this is your second condition. And if I want to combine 2 or more conditions, अगर मैं एक से ज़्यादा conditions को combine करना चाहती हूँ, तो मैं किसका यूज़ करूँगी? Logical operators का। Are you getting my point? Relational operator का यूज़ क्या होता है? To make a conditional statement, एक कंडीशन बनाते हैं। जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन बनाई है ना मैंने कि 2 3 से बड़ा है या नहीं है, कंडीशन बना रही हूँ मैं एक। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी आर हैविंग, लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज़ योर लॉजिकल, दिस इज़ योर लॉजिकल एंड, this is your logical or, and this one is logical not. Got it? And these are the names and these are the symbols on the left side, these are your symbols. अब पहला क्या है? लॉजिकल एंड। पहला वाला जो सिंबल है इसका नेम क्या है? एंड, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। नाउ दिस रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। अगर मैंने किसी एक्सप्रेशन में सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। एग्जाम्पल, अदरवाइज फॉल्स। एग्जाम्पल देखो, 2 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, एंड 4 इज ग्रेटर देन 5। अब मैंने क्या लगाया है बीच में? एंड लगाया है ना, एंड। अब चेक करो, 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, 4 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। क्या मिलेगा आंसर? पढ़ो ज़रा इसको। ट्रू कब रिटर्न करेगा? इफ़ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर सारी कंडीशंस ट्रू है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होती, तब आंसर कितना आता? ट्रू। और अदरवाइज कोई भी केस होगा तो कितना आंसर आएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर कितना आएगा? फॉल्स। ठीक है ना? तो अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी एंड के केस में आंसर कितना आता है? ट्रू। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। नाउ चेक इट, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस। 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो अब इसमें क्या है? ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। कितनी भी हो सकती है, मैं तो सिर्फ 2 कंडीशंस लिख रही हूँ, इट कैन बी 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, ठीक है। हियर दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वन इज योर सेकंड कंडीशन। गॉट इट? सो ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस क्या है? ट्रू। अगर सारी ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर ऐसा होता कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, सपोज ये फॉल्स है, तो आंसर कितना आता? फॉल्स। समझ रहे हो ना? आंसर कितना आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज और क्या कहता है कि आंसर जो है वो ट्रू कब आएगा?
इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब अगर दोनों फॉल्स होंगी तो आंसर कितना आएगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। 2 is greater than 3 or 4 is less than 5. 2 is greater than 3, answer false, और 4 is less than 5 true। तो उसने क्या कहा है कि ये ट्रू कब देता है, जब कोई भी एक कंडीशन कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर एक कंडीशन कम से कम ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। अब इस दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो आंसर कितना देगा, ये ट्रू। अगर सपोज करो ऐसा होता दोनों ही ट्रू हो जाती, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती, तो भी आंसर कितना आता, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तो आंसर कितना आता, फॉल्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट क्या करता है, इट परफॉर्म्स द इन्वर्शन प्रोसेस, मतलब ये क्या करता है, ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, और फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 3, इससे पहले मैंने लगा दिया नॉट। नाउ 2 इज ग्रेटर देन 3, होता है 2 3 से ग्रेटर, नो, तो कितना है, फॉल्स। एंड नॉट ऑफ फॉल्स कितना हो जाएगा, नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू, यानी कि फॉल्स का कर देता है ट्रू और ट्रू का कर देता है फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। द लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हेयर इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है, दिस इज यूज टू असाइन द वैल्यू, this is used to assign a value into a variable and the sign of this assignment operator is this। कौन सा साइन यूज करते हैं, ये इक्वल साइन। ध्यान रखना ऊपर जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज योर डबल इक्वल, लुक एट हियर, दिस वाज योर डबल इक्वल साइन विच इज यूज टू परफॉर्म द कंपैरिजन। डबल इक्वल क्यों यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। और सिंगल इक्वल का यूज क्या है, यूज टू असाइन अ वैल्यू। There is a difference between single equal and double equal. So now here an example is given like if int n is num equal to 5, इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो वैल्यू है that is going to assign into your num। किस में जा रही है 5 वैल्यू, num के अंदर। ठीक है, and num is what, num is a variable of which type, integer type। तो num एक वेरिएबल है जो 5 वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ सपोज कि a के अंदर 10 स्टोर कराना चाह रही हूँ, तो क्या लिखूँगी, int a is equal to 10। आई वॉन्ट टू टेक अ फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल b, तो क्या लिखोगे, फ्लोट b is equal to, now take a fractional value like 10.6, so I am going to take here 10.6, got it। So this is the use of your assignment which is used to assign the right side value into the left side. So here we have completed our operators definition and different types of operators. So that's it for the today's class. In the next class we will study about the comments and types of Java programs. After that your chapter will get over. So that's all. Thank you.